جی باجی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما نافعا. جیسا کہ ہم لوگوں نے پچھلی مرتبہ عربی کے تعارف کے تعلق سے کافی چیزیں سمجھی تھیں، اور ہم نے یہ جانا تھا کہ عربی زبان ہمیں کئی طریقوں سے کامیاب کرتی ہے. اسی سفر کا آج پہلا سبق ہے ہمارا. ساتھ ساتھ ہم سوال کریں گے کچھ، آپ لوگ اس کے جوابوں کے لیے تیار رہیے، اور اپنی طرف سے بھی آپ جب سوال کرنا چاہیں تو آپ کو پوری اجازت ہے، اور آپ کسی بھی وقت مائک آن کر کے سوال پوچھ سکتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 1 آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، لکھا ہے ہاذا. کوئی اور پڑھ کر بتائیے ذرا یہ کیا لکھا ہے اور کس رنگ سے لکھا ہے، ذرا بتائیے یہ کس کلر سے لکھا ہے، آپ کو کس کلر سے نظر آ رہا ہے؟ بلو بلو. بلو کلر سے کلر لکھا سے. ہے. کوئی پڑھیے ذرا کیا لکھا ہے. هذا. جی بہت یہ سارے لوگوں نے بہت ٹھیک پڑھا، ماشاءاللہ. ہاذا. اصل میں اس میں عام طور پر لوگ اس کو ہاذا پڑھتے ہیں، لیکن یہ قرآن مجید میں اسی طرح لکھا گیا ہے، ہا وتھ کھڑا زبر، ہاذا. اگر آپ کریکٹ پروننسیشن عربی ایکسنٹ پڑھنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس پر ایلونگیشن ہوگا، اس کو اسٹریچ کر کے کھینچ کر ہی پڑھیں گے ہاذا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے دس. یہ بہت ایزی سا ہے، یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، ہاذا مانے یہ. اور یہ ہمارا سبق نمبر 1 ہے جو بہت آسان سبق ہے. ہم اس کو کہتے ہیں، اس کا نام کیا ہے اس سبق کا؟ اس سبق کا نام ہے اسماء الاشارہ. اسماء الاشارہ یعنی ڈیمانسٹریٹو ناؤنز. آپ اس کو پوائنٹنگ ورڈز بھی کہہ سکتی ہیں. جب ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو کچھ ہمارے جسچرز ہوتے ہیں، آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں، ہاتھ سے کرتے ہیں، لیکن جب بول کر اشارہ کرنا ہو تو ہمیں عربی میں اسماء الاشارہ کی ضرورت پڑتی ہے، اور اسی کو انگلش میں ہم ڈیمانسٹریٹو ناؤن یا پوائنٹنگ ورڈز بھی کہہ سکتے ہیں. اس اسماء اسم کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نام، اور اشارہ یہ اردو کا لفظ ہے، آپ جانتی ہیں اشارہ ہم کسی چیز کی طرف پوائنٹ کرنے کے لیے بولتے ہیں. تو سب سے پہلا اس میں اشارہ ہے ہاذا، اور اس لفظ کی تفصیل یہ ہے کہ صرف ایک لفظ سیکھ کر انسان پوری عربی یا پورے عرب کنٹری کے لیے اس کو ایک سروائیول کے طور پر یہ ورڈ کام آتا ہے. ایک چھوٹا سا لطیفہ ہے کہ ایک شخص کسی عرب ممالک پہنچے تو انہیں عربی نہیں آتی تھی، تو ان کو بہت پرابلم ہو رہی تھی. ایک بار وہ شاپ پر گئے، انہوں نے کہا کہ آٹا ہے، تو انہوں نے پوچھا دکاندار نے ہاذا، تو انہوں نے کہا نہیں، مطلب کھجور کی طرف اشارہ کر کے پوچھا یہ چاہیے. دکاندار ہر چیز کی طرف اشارہ کر کے ہاذا 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 اس طرح پوچھ رہے تھے. آخر میں جو کسٹمر تھے انہوں نے کہا، جب دکاندار نے آخر میں گیہوں کی طرف اشارہ کر کہا ہاذا، تو انہوں نے کہا ہاذا کا یوں یوں، مطلب ہاتھوں سے تھم اور انگلیوں سے اشارہ کر کے یوں یوں کہا، مطلب اس کا آٹا دے دو. تو یہ ایک بہت بڑا ٹول مانا جاتا ہے کہ یہ سروائیول ٹول ہے. اگر صرف یہ بھی آ جائے انسان کو تو بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے. اور یہ ہمارے سبق کا آج پہلا لفظ بھی ہے الحمدللہ. یہاں پر دیکھیے آپ لکھا ہے پہلا جملہ ہاذا بیتن. ہاذا یہ بیتن، ایک گھر ہے. یہ ایک گھر ہے. سسٹر کہکشاں نے جواب دیا. سسٹر کہکشاں آپ بتائیے ایک کی عربی کیا ہے؟ ہاذا مانی اس میں یہ، تنوین ہے باجی. بیتن مانی بیت پر گھر. بیتن پر تنوین ہے، دمت اچھا تین. اچھا، جی جی. اگر کبھی بھی دو پیش آ جائیں، یہ جو ہے دو پیش ہے، اگر کبھی بھی دو پیش آ جائے تو اردو میں اس کا مطلب ایک ہوتا ہے. اسی لیے یہاں پہ لکھا ہے دس از اے ہاؤس، یہ ایک گھر ہے. ہاذا بیتن، یہ ایک گھر ہے. اب اس کو ہم ایسے بھی بول سکتے ہیں یہ گھر ہے. دونوں طرح ٹرانسلیشن بالکل ٹھیک ہے. اب آپ انگلش کو دیکھیں گے، انگلش میں کیا لکھا ہے دس از اے ہاؤس. دس از ہاؤس ایسا انگلش میں نہیں بولتے، وہ چاہے کوئی بھی ایک چیز ہوتی تو اے ضرور لگاتے ہیں.
اسی طرح عربی میں اس کی جگہ ہم تنوین لگاتے ہیں، مینس ڈبل حرکت لگاتے ہیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش ایک کا ترجمہ دیتا ہے۔ کبھی کبھی اس کے ترجمے اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکسٹ سینٹینس ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ کہہ سکتی ہیں یہ ایک گھر ہے، حاذا مانے یہ اور بیتن مانے گھر۔ اب ایک سوال ہے، سسٹر شازیدہ بتائیں گی۔ سسٹر شازیدہ، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ گھر کی عربی کیا ہوگی؟ سسٹر جی شازیدہ اپنے مائک۔ بیتن بیتن، بیتن نہیں بیتن، ہے نا؟ ٹھیک ہے، بیتن تھوڑا سا مطلب تعلق قائم رہے اس لیے ہم بیچ بیچ میں سوال کرتے رہیں گے۔ حاذا مانی جی دس، بیتن مانی ا ہاؤس یا ایک گھر، اور حاذا بیتن یہ ایک گھر ہے۔ اب جلدی جلدی دیکھتے ہیں۔ حاذا مسجد، اس میں آپ کو کوئی عربی نہیں سیکھنی ہے، مسجد ہم اردو میں بھی بولتے ہیں۔ حاذا مسجد، دس از اے ماسک، انگلش سیکھ سکتے ہیں، ماسک مسجد کو کہتے ہیں۔ دس از اے پین۔ حاذا قلم، قلم، کلم، قلم، لام ود زبر، ہیونگ زبر ہیئر، قلم، بہت سے لوگ کلمن بول دیتے اس کو، تو لام کے زبر کے ساتھ بولیں۔ یہ ایک پین ہے۔ बाजी मस्जिद को क्या मॉस्क? جی ماسک۔ ہاذا کتابن، یہ ایک کتاب ہے۔ یہ سب وہ لفظ ہیں جو ہم اردو میں بھی ایز اٹ از بولتے ہیں۔ ہاذا مکتبن، یہ مکتب ہے، یہ ڈیسک ہے یا ٹیبل ہے۔ ہاذا مفتاح، ہاذا مفتاح، یہ ایک چابی ہے، دس از اے کی۔ ہاذا بابن، دس از اے ڈور، بابن مینس دروازہ۔ اب ہم اپنے سیکنڈ پارٹ پر جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم بتا دیں، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ تو ہم عربی جانتے ہیں، اتنی ایزی عربی ہم پڑھ رہے ہیں، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ہاذا جب بھی آئے گا تو یہ 2 طریقے سے آپ کو دکھائی دے گا۔ ایک تو یہ کہ ہاذا کے بعد ایک ایسا لفظ آئے جس کے اوپر 2 پیش ہو یا 2 زبر ہو یا 2 زیر ہو۔ ایسا لفظ جس پر ڈبل حرکت ہو اسے ہم کہتے ہیں انڈیفینٹ ناؤن، کامن ناؤن، عام نام، اسم نکرہ۔ جو عام نام ہوتا ہے، جیسے دروازہ، ہر دروازے کو دروازہ بول سکتے ہیں، جیسے آپ کہیے گرل، ہر لڑکی کو گرل کہا جا سکتا ہے، لیکن فاطمہ، رخسانہ، زینب، رقیہ، یہ خاص نام ہے، پراپر ناؤنز ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو نام ہوتے ہیں، یعنی جو عام نام ہوتے ہیں، ان کے اوپر ڈبل حرکت آتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ہاذا کے بارے میں۔ ہاذا کے بعد آپ کو اگر ایسا لفظ دکھائی دے جس پر 2 پیش ہیں، جیسے کہ بابن پر آیا اور اس سے پہلے سارے ہی جملوں پر تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک کمپلیٹ سینٹینس ہے۔ ہاذا بابن، یہ ایک دروازہ ہے۔ اگر اس کے خلاف یہ جملہ ایسے آتا، ہاذا یہاں پر البابو ہوتا، تو پھر یہ انکمپلیٹ سینٹینس بنتا، جو آج کا سبق نہیں ہے۔ آج کا سبق یہ ہے کہ اگر آپ کو سینٹینس بنانا ہو تو ہاذا کے ساتھ کوئی بھی نیا لفظ جوڑ کر اس پر پیش لگا دیں، وہ جملہ ہو جائے گا۔ کون سا جملہ ہو جائے گا؟ ایسا جملہ جس میں 2 لفظ ہیں، پہلا لفظ ایک نام ہے اور دوسرا بھی ایک نام ہے، جسے انگلش میں ہم سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ کہتے ہیں، ہندی میں عربی یا اردو میں مبتدا اور خبر کہتے ہیں۔ ہاذا مبتدا ہے، مبتدا جس سے ابتدا ہو، اور جو بعد میں آتا ہے اسے خبر کہتے ہیں۔ انگلش میں ان دونوں حصوں کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو سبجیکٹ اور اس کو پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ تو اوور آل کنکلوژن یہ ہے کہ ہم نے آج کیا سیکھا؟ ہاذا کے بارے میں سیکھا۔ ہاذا ایک پوائنٹنگ ورڈ ہے، اس میں اشارہ ہے، اور یہ جب بھی آئے گا تو اس کے بعد ایک لفظ آئے گا جس پر ڈبل پیش ہوگا، تو یہ ایک کمپلیٹ سینٹینس فارم کریں گے، ایک مکمل جملہ بنائیں گے، اور اس کا جواب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ دروازہ ہے۔ ہاذا جنتن، کیا ترجمہ ہوگا بتائیے؟ ہاذا جنتن، ये एक जन्नत है। जन्नत का दरवाजा, نہیں، जन्नत का दरवाजा। یہ دروازہ جنت ہے، نہیں بولا ہے، پلیز سن کر جواب یہ دیں۔ ہاذا ये جنتن، एक जन्नत है। یہ ایک جنت ये ہے۔ ہاذا یہ ایک رسول، جنت، ये एक ये एक रसूल है। रसूल है। एक रसूल है। ہاذا جہنم، ये ये एक एक जहन्नुम है। जन्नत है। جی، अस्तगफुरुल्लाह। تو یاد رکھیے، استغفر اللہ جی،
तो इस तरह हम हाजा के साथ कोई भी एक नया लफ्ज जोड़कर एक सेंटेंस बना सकते हैं। और आप कोशिश ये करिए कि कुरान मजीद से आपको इस्म ढूंढना तो आ गया है, इस्म कैसे ढूंढेंगी कोई बताइए, जरा दोहराइए, बताइए प्लीज। जिस पे तनवीन हो, जिस लफ्ज के आखिर में तनवीन हो या डबल तनवीन हरकत हो वो इस्म होगा। और इस्म ऐसा ही इस्म आपको हाजा के साथ जोड़ना है। अब करना क्या है, यहाँ आपका होमवर्क शुरू हो रहा है। आपको हाजा के साथ कोई एक नया लफ्ज जोड़ना है जिसके आखिर में दो पेश आने चाहिए, और फिर आप उन दोनों को मिलाकर तर्जुमा कीजिए। कम से कम 5 सेंटेंस आप अपनी नोटबुक में लिख लें। जो लिखेंगे उनकी वोकैबलरी अच्छी हो जाएगी और उनका तरीका आ जाएगा। अगर किसी को ये बात समझ में ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्या ये आसान है बनाना या मुश्किल है, बताइए। आसान है बाजी इंशाल्लाह। जी आसान है। आसान है, बना लेंगे। पापा बना लेंगे। जी जैसे ये हाजा बा बायबुन, जी तो आपा जैसे इसके बाद हम यहाँ जैसे डबल पेश है, तो यहाँ डबल पेश हम लगा देंगे या फिर कोई नया अल्फाज जोड़ डबल के उस पे? पेश ही लगाएंगे, नया अल्फाज हो सकता है लेकिन हमेशा डबल पेश ही लगाएंगे। हाजा के बाद जब भी दूसरा लफ्ज आएगा, हो सकता है कुरान मजीद में आप जो ढूंढें उस पर डबल जबर आ रहा हो या डबल जेर आ रहा हो, लेकिन जब आप नंबर तरतीब देंगे हाजा के बाद जब दूसरे नंबर पर कोई भी लफ्ज आएगा तो वहाँ हमेशा पेश ही लगाएंगे, क्योंकि ये अरबी ग्रामर के हिसाब से ये मुब्तदा है। मुब्तदा वो लफ्ज होता है जो सबसे पहले लिखा जाए, और अरबी ग्रामर के हिसाब से ये खबर है। हम लोग कैसे गिनते हैं, 1 2 3, लेकिन अरबी में गिनना हो तो पहले को मुब्तदा कहते हैं, इसका मतलब 1 मान लीजिए, और दूसरे को खबर कहते हैं, इसका मतलब 2 मान लीजिए। और खबर पर हमेशा पेश ही आता है, पेश ही आता है। और कुरान मजीद से आप अल्फाज ढूंढकर इसमें आपको ढूंढना गया है, हाजा के साथ आप नए नए जुमले बनाइए। जी इंशाल्लाह। चलिए अब बात करते हैं हम, अगर आप लोग का कोई सवाल हो तो आप लोग कर लीजिए, फिर हम क्लास के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। हम लोग पिछली मरतबा जी सिस्टर फौजिया। अगर जैसे बाजी हम लिखते हैं सिर्रन, ये एक इसम है, और अगर हम इससे पहले हाजा सिर्रन कर दें तो? जी हाँ, ये सिरन वाला ने तो ये छुपा हुआ है, सिरन मीन्स अच्छा, छुपा हुआ। छुपा हुआ, तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो हाँ जाएगा। जी बिल्कुल, ठीक, शुक्रिया। लेकिन सिरन की जगह सिर्रुन होना चाहिए वहां पर। हैविंग पेश, उस जो प्रेडिकेट होगा वो जी, या खबर जो होगा उस पर हमेशा पेश लगाना होगा। अच्छा, ठीक है जी। देखिए जो हाजा के साथ में होगा उस पे पेश लगाना होगा बाजी। हाजा हाजा, के बाद हाजा के साथ में दूसरा वर्ड जो होगा उसमें पेश लगाना होगा। जी हाँ, जी। क्यों लगाना होगा ये भी जान लीजिए, क्योंकि हाजा मुब्तदा बनता है, मुब्तदा पर भी और पेश वो आता है, और वो खबर होता है, खबर पर हमेशा पेश ही आना चाहिए, इसलिए। अब देखिए रूट वर्ड्स हम पढ़ रहे थे, कुछ हम लोगों ने जिक्र किया था। इसकी एक मिसाल हम लाए हैं, एक पेंसिल आपको दिखाई दे रही है, ऊपर लिखा है रिएक्शन, और आप लोग जानते हैं इस वर्ड को। तो रूट और बेस वर्ड, किसी के माइक से बहुत आवाज आ रही है, प्लीज जिसका माइक डिस्टर्ब कर रहा है आप माइक ऑफ कर लीजिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं रूट और बेस वर्ड्स हम बीच में देखेंगे, कुछ प्रीफिक्सेस होंगे और कुछ सफिक्स होंगे। प्री माने पहले, और जो हम पहले जोड़ेंगे उन्हें प्रीफिक्स कहेंगे, और जो बाद में जोड़ेंगे वो सफिक्स होंगे। इससे पहले हम आपसे एक एक्सरसाइज कराना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए ये ट्री आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, हमारी क्लास में सिस्टर उमैमा है, हम आपका बहुत खुशामदीद पेश करते हैं। जरा माइक ऑन कीजिए, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं सिस्टर उमैमा? आपको आवाज आ रही है तो प्लीज माइक ऑफ ऑन कीजिए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं आप सिस्टर? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, कुछ समझ में आ रहा है, आवाज ठीक है?
जी जी, आवाज़ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बस अभी हम ज्वाइन किया है, हम वही देख रहे हैं हाजा। जी जी, चलिए हम जी जी आपसे एंड में फीडबैक लेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ जी पर रूट इंशाल्लाह। वर्ड्स हैं, देखिए ये रूट वर्ड्स हैं राइट, एक्ट, प्ले, टाई, एग्री, रीड, जॉय एंड व्यू। यहाँ पर कुछ आपको प्रीफिक्सेस दिए हुए हैं और कुछ सफिक्सेस दिए हुए हैं। सबसे पहले सवाल हम सिस्टर फातिमा से करना चाहते हैं। सिस्टर फातिमा, यहाँ पर एक लफ्ज लिखा हुआ है प्ले, PLAY, प्ले। अगर आप इसके शुरू में इनमें से कुछ जोड़कर हमें कोई लफ्ज बना कर दें या फिर आखिर में जोड़ दें, सिस्टर फातिमा एक लफ्ज बना सकती हैं? या सिस्टर इकरा आप बनाइए। रिप्ले। रीप्ले, रीप्ले मीन्स दोबारा चलाओ, दोबारा प्ले करो। और कुछ एक सफिक्स भी ले लीजिए, इन्होंने यहाँ से री ले लिया है, री के शुरू में प्ले लगा दिया, यहाँ से एक सफिक्स ले लीजिए कोई। प्लेइंग। प्लेइंग, ING लिया है, प्लेइंग भी ले सकते हैं, ER भी ले सकते हैं, प्लेयर भी ले सकते हैं, प्लेड भी ले सकते हैं, तो प्लेस भी ले सकते हैं, एस भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि ये एक्चुअल वर्ड्स हैं, मेन वर्ड्स हैं या बेस वर्ड्स हैं, और हम इसमें प्रीफिक्स और सफिक्सेस जोड़कर नए वर्ड्स बना रहे हैं। इसी तरह अरबी में क्या होता है, अरबी भी इसी पैटर्न पर काम करती है। और आपके प्रीफिक्सेस क्या है? प्रीफिक्स मतलब जो हमें शुरू में जोड़ना है। अभी हम एक सवाल करेंगे, बहुत गौर से आप लोग याद कर लीजिए। अलिफ, ता या नून, अलिफ, ता या नून। अगर आपको याद करना हो तो इसका एक कलेक्शन फॉर्म कर लेते हैं, इसको एक नाम दे देते हैं अतैना। अलिफ, ता या नून, अतैना। अच्छा सिस्टर सानिया बताइए, अतैना में कितने हर्फ हैं? जल्दी से बताइए, कोई भी जवाब दे सकते हैं। 4 हैं, ठीक है, ठीक है। 4। लेकिन ये आपको याद रखना है क्योंकि अभी हम सवाल करेंगे वो कौन कौन से हैं, अलिफ, ता या नून। और दूसरा जो प्रीफिक्स है वो है अस्त, अलिफ, सीन, ता। ये 1 2 3 4 5 5 प्रीफिक्सेस हैं जो हम किसी भी लफ्ज के शुरू में जोड़ते हैं। और ये वाव नून, या नून, या यहाँ पर डॉट्स मिसिंग है, लेकिन ये वाव नून है और ये या नून है, 1 2। और ये अलिफ ता है, आप में क्या बोली है बाजी? अस्त, अस्त, वाव नून, या नून, अलिफ ता और ता, ये जो है सफिक्स हैं, यानी हमें ये किसी लफ्ज के आखिर में जोड़ना है। यहाँ पे लिखा है ओनली इस्म एंड फेल हैव इट। सिर्फ ये जो रूट वर्ड होते हैं ये सिर्फ इस्म में होते हैं और फेल के अंदर होते हैं, मतलब नाउन को के अंदर रूट वर्ड्स होते हैं और वर्ब्स के अंदर, एक्शन वर्ड्स के अंदर मोस्टली 3 लेटर्स। ये हम पढ़ चुके हैं कि अरबी एक सेमेटिक लैंग्वेज है और इसके अंदर ज्यादातर 95% जो वर्ड्स होते हैं वो 3 रूट लेटर बेस्ड होते हैं, मतलब हर लफ्ज की असल जो होती है वो 3 हर्फ होते हैं या 3 लेटर्स होते हैं। मस्ट मेंटेन में, अच्छा, कैन हैव वीक लेटर्स, अलिफ या अलिफ वाव या। हम आपको दिखाते हैं आगे, बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है, इससे हम बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। एक मिसाल भी हमने पिछली बार पेश की थी, जैसे किताबुन, कातिबुन, मकतब, मकतबा, मकतूब, यकतुबु या कतबा। इसमें से बहुत सारे लफ्ज आपने पहले से सुन रखे हैं, जैसे किताब, कातिब, मकतब, मकतबा। हम आपको बता रहे हैं ये कि इसमें जैसे ये देखिए यहाँ पर लिखा है काफ ताबा, ये रूट वर्ड्स हैं, काफ ताबा, नून अलिफ मीम, मीम शीन या, ये तीनों जो है रूट वर्ड्स हैं जिसके अंदर 3 ही लेटर्स हैं। अब इसका मतलब है राइट, कतबा मीन्स, नामा मीन्स स्लीप, और मैम मशाया, स्क्रीन क्लियर नहीं है, बाकी लोग भी साइड से बताएं। कट रहा है, अच्छा अच्छा देखते हैं, साइड से कट रहा है। अच्छा 1 मिनट हम देखते हैं। नहीं 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 कट रहा है, एकदम साफ नजर आ रहा है, इतनी ही है। नहीं बाजी, एक का थोड़ा सा जा रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा आपको? फर्स्ट वाले। हाँ, ये नहीं दिखाई दे रहा है, ये इसमें पूरा नहीं आ रहा है, खाली ता और बा दिख रहा है, और लास्ट या दिखा है एक में, और एक में मीम है शायद, की क्या है। बताइए आप। हाँ
हाँ अब आ गया नून नून अलिफ मीम अल्हम्दुलिल्लाह। जी क्लियर है। ठीक ठीक। तो अब यहाँ क्लियर पर हो गया इनमें बाजी। सब में 3-3 वर्ड्स 3-3 लेटर्स हैं और हर एक का मतलब यहाँ लिखा है। कतबा मीन्स लिखना, नामा मीन्स सोना और मशा मीन्स चलना। जब आप इनको क्या करते हैं, सिर्फ पहले काफ के बाद आपको अलिफ लगाना है, यहाँ पर नून के बाद अलिफ लगाना है और मीम के बाद अलिफ लगाना है। देखिए कतबा में आपने क्या करा, काफ के बाद अलिफ लगाया, कातिब बन गया। ऐसे यहाँ पर अलिफ ऐड किया, हमजा नाइम बन गया। नाइम बन गया। मशाक में अलिफ ऐड किया, सिर्फ अलिफ ऐड कर रहे समय माशी बन गया। और हर एक का मतलब है, कातिब मीन्स राइटर, नाइम मीन्स स्लीपर सोने वाला, माशी मीन्स चलने वाला। इसी तरह हम ले लेते हैं जहाबा, जाल हा बा, 3 हर्फ है जहाबा, जाल के बाद अलिफ लगा दीजिए, जाहिब बन जाएगा। नसरा, नून स्वाद रा, नसरा मीन्स मदद करना, नून के बाद अलिफ लगाइए, क्या बनेगा, जहाबा से जाहिब बना, नसरा से क्या बनेगा, नासिर, नासिर। शकरा से, शाकिर, अबदा से, आबिद, आबिद, अकला से, आबिद, अकला से, आकिल। 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 जी, तो आप देख रहे हैं, सिर्फ आपको रूट वर्ड पता था। अगर आपको 3 रूट वर्ड का मीनिंग पता हो तो आप अगला लफ्ज आप खुद बना सकती हैं। और कितने लफ्ज बना सकती हैं, यहाँ पर आप देखिएगा, सिर्फ आपको रूट वर्ड पता करना है और आप बना पाएंगी। इस एक स्क्रीन में है, शायद नीचे है, हमें तो इतना मालूम भी नहीं था। आज हमने देखा इनका इतने ज्यादा वर्ड्स फॉर्म हो पा रहे हैं, मोर देन 17 और आई थिंक 18 थे। पता नहीं वो स्लाइड शायद इसमें हमें नजर नहीं आ रही है। 17-18 लफ्ज आप बना सकती हैं, सिर्फ एक पैटर्न को फॉलो कर कर। किसी में अलिफ जोड़कर, किसी में सिर्फ वाव जोड़कर, किसी में वावनून जोड़कर, किसी में ता जोड़कर, इस तरह। अभी तो हम इसको सीख रहे हैं, मतलब इसके बारे में पढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह हम रूट लेटर को सबक के एतबार से या आयतों के एतबार से पढ़ेंगे, वहाँ इंशाल्लाह आपको बहुत आसान हो जाएगा इसका सीखना। जैसे मिसाल के तौर पर हमने एक और यहाँ पर देखा था इस वाली स्लाइड के अंदर, ये देखिए यहाँ पर लिखा है वाउनून। वाउनून देखेंगे कुरान मजीद में, जैसे मुस्लिमुन एक लफ्ज है, वाउनून लगा दीजिए, मुस्लिमूना, मुमिनुन मुमिनूना, काफिरुन काफिरूना, शाकिरुन शाकिरूना, यानी शुक्र करने वाले बहुत सारे लोग। वाउनून हमें प्लूरल बनाने के लिए काम आता है। जैसे इंग्लिश में क्या कायदा होता है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, इंग्लिश में हम क्या करते हैं, प्लीज माइक ऑफ रखें। इंग्लिश में हम लोग बस आखिर में एस लगा देते हैं, कार कार्स, कभी ई एस लगाते हैं, ब्रश ब्रशेस। इसी तरह और भी रूल्स हैं इंग्लिश के, कभी हम लोग वी ई एस लगाते हैं, कभी आई ई एस लगाते हैं, जैसे बेबी बेबीज, कभी इंटरचेंजिंग करते हैं। लेकिन अरबी में आपको क्या करना है, किसी का माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक ऑफ रखें, ख्याल रखें, क्लास रिकॉर्ड हो रही है। तो वाव नून लगाने से किसी भी लफ्ज के आखिर में वो प्लूरल बन जाता है। चलिए आप लोग बताइए, जैसे जहाबा से जाहिबूना, अकला से आकिलूना, शकरा से बनाइए, शाकिरूना, शाकिरूना, अबदा से, आबिदूना, तो इसका आबिदूना का मतलब है बहुत सारे इबादत करने वाले मर्द, शाकिरूना बहुत सारे शुक्र करने वाले मर्द। ये हम प्लूरल फॉर्म बना रहे हैं मेल के लिए। इसी तरह यहाँ पे लिखा है आतुन, अगर किसी लफ्ज के आखिर में आतुन आप लगा दें अलिफ ता, तो वो फीमेल की प्लूरल फॉर्म बन जाती है। जैसे मुमिनुन से मुमिनातुन, काफिरुन से काफिरातुन, शाकिरुन से शाकिरातुन। शाकिरातुन। हाँ, हम मुजक्कर टू मोनस बना रहे हैं, वैसे मोनस टू मोनस बनानी होती है। जैसे शाकिरतुन से शाकिरातुन, वो हम इंशाल्लाह असबाक के अंदर बताएंगे। अभी हम थोड़ी देर के लिए अपनी क्लास को रोक रहे हैं, बस आप लोग का अगर कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। आपके पास 30 सेकेंड्स है, और वैसे भी हमारी क्लास अभी 5 मिनट में ऑटो एंड हो जाएगी। आप लोग बताइए, रीजॉइन आप जी लोग बाजी, रीजॉइन करना है या हम इसको मुकम्मल, इंशाल्लाह। सब नहीं लोग? बाजी, जी रिज्वाइन कर, रिज्वाइन करना है। जो लोग नहीं करना चाहते हैं वो अपना जवाब दे दें प्लीज। 10 मिनट के लिए करेंगे हम। करेंगे 10 बाजी हम मिनट लोग के लिए इंशाल्लाह। रिज्वाइन रखो। ठीक ठीक ठीक, रीजॉइन करिए। ठीक है। आप सिर्फ आप 10 मिनट के लिए रिज्वाइन है। और जी जी,
आप लोग अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ लें.